حضرات السلام علیکم۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور دیگر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ناقص غذا پہ ہے۔ ناقص غذا پہ ہمارا جو موضوع ہے، سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے چکن برائلر پہ۔ چکن برائلر پہ بات کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں کھایا جاتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ ناقص غذا بن چکا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی جانوں کو خراب کر گیا ہے، بہت ساری بیماریوں کو کریٹ کرا اس نے۔ اگر اسی طرح یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا رونا شروع کر دے گی۔ اگر ایسا ہوا تو حالات جو ہے نا بڑے خراب ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نے تو بات کرنی ہے، سیاست پہ نہیں کرنی، ہم نے تو برائلر چکن کے ناقص ہونے پہ بات کرنی ہے۔ برائلر چکن کا گوشت جب ناقص ہو گیا تو تب اس کو کھلانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اب بات کرنی ہے کہ ثبوت کیا ہے اس کا کہ یہ چکن کا گوشت ناقص ہوا ہے۔ ہاں، سب سے پہلے جب چوزا نکلتا ہے تو یہ انڈے سے پاک صاف نکلتا ہے، اس میں کوئی بیماریاں نہیں پائی جاتی۔ اگر ناقص غذا اس کو دی جائے گی تو یہ ناقص ہو جائے گا، تو ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کی فیڈ بہت ناقص چیز ہے، بہت ہی ناقص غذا بنا کر اس کو کھلائی جا رہی ہے، جس کے اس کے پیٹ میں، اس کے بلڈ میں، اس کے گوشت میں بہت سارے جراثیم سرایت کر گئے ہیں۔ ان کے سرایت کرنے سے یہ گوشت دوسروں کے پیٹوں میں جب جاتا ہے تو یہ سارے جراثیم ان کے پیٹوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سارے جراثیم ان کے پیٹوں میں کنورٹ ہوتے ہیں تو سیم بیماریاں کریٹ ہوں گی جو چکن برائلر کو ہیں۔ چکن برائلر کو بیماریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کی انتڑیوں میں ایک بیماری ہوتی ہے کوکسی، جس کے بیکٹیریا کا نام ہے اسٹیفلوکوکس۔ دوسری بیماری ہوتی ہے اس کے جگر اور گردوں کو ناقص کر جاتی ہے، جسے پلورم ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کے بیکٹیریا کا نام ہے پلورل۔ اس کے علاوہ رانی کھیت ہے، کوریزا ہے اور دیگر بہت ساری بیماریاں، جن میں جگر کا بڑھ جانا، جگر کا زخم، جگر سکڑ جانا، یہ ساری پیٹ میں پانی پڑ جانا، یہ ساری اس کی بیماریاں ہیں، جس کے وائرس اس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں اور اس گوشت کے اندر سرایت کر چکے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے اسٹیفلوکوکس انتڑیوں پہ بہت برا اثر کرتا ہے۔ اسٹیفلوکوکس انتڑیوں میں زخم پیدا کرتا ہے، جانور کو خونی پیچس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خونی پیچس آتے ہوئے اگر اتنے بڑے شیڈ میں کسی جانور کا دھیان نہ رہے تو وہ جانور جس کو خونی پیچس آ رہے ہیں، وہ خونی پیچس آتے ہوئے کہ جب دن گزریں گے تو وہ جراثیم بڑھتے 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 سٹیپ وائز آپ کے اس کے جگر کو نقصان کر جائیں گے، اس کے جگر میں سرایت کر جائیں گے وہ جراثیم۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس کے جگر میں بھی، اس کی نالیوں میں بھی، جگر کی نالیوں میں بھی اسی طرح زخم کریں گے۔ جب جگر کی نالیوں میں اسی طرح زخم کریں گے تو جگر ناقص ہو جائے گا، سوج جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ پیٹ میں پانی پڑ جائے گا۔ جیسے ہم لوگوں کے جگر اور گردے خراب ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، اسی طرح اس کے بھی سوجیں گے بھائی۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے گا، اور وہ ایسا ہی ہے نا، برائلر چکن اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا، زیادہ مقدار میں چل پھر نہیں سکتا۔
बदले में देसी ग़िज़ा खाई हुई मुर्गी को। देखें, दोनों में फ़र्क निकालें। अगर ये फ़र्क ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिगर के बिगाड़ के बाद इसके टांगे बाजू काम करना छोड़ती हैं। उसके बाद बारी आती है कि जिगर जब नाकस हो जाता है उसके बाद नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी नुकसान हैं वो सारे हेपेटाइटिस सी की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। जानवर को बजाते खुद हेपेटाइटिस सी हो जाता है, क्योंकि तभी तो पानी पड़ता है पेट में। फिर आगे चलते हैं कि ये प्लोरम क्या है। प्लोरम बीमारी है जिसमें प्लोरल डिजीज नाम है इसका, लेकिन इसमें प्लोरल बैक्टीरिया है जो इसके जिगर और गुर्दों में नुकसान करता है। इससे सफेद दूधिया कलर का पानी नुमा दस्त आता है जानवर को। जो पानी नुमा दस्त करते हैं, कुछ देर के बाद वही पानी दूध की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जिगर ने जितना भी ग्लूकोज अपने अंदर समाया था वो सारे का सारा ही बाहर फेंक दिया। जिगर की इस बीमारी को गुर्दे खराब कर देते हैं। गुर्दों की और जिगर की इस बीमारी को दिल को खराबी आ जाती है। जिगर पे फोड़े बन जाते हैं, गुर्दों में फोड़े बन जाते हैं, दिल पर फोड़े बन जाते हैं, जानवर तिलमिला के मर जाता है। अगर ये सारे जरासीम इसके अंदर मौजूद रहें और वही अंतड़ियां उसी की फीड में एडजस्ट कर दी जाएं, मिला दी जाएं उसकी ग़िज़ा के तौर पे, तो क्या ये दुरुस्त रहेगा? अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर इसको क्यों खिलाएं? ये ग़िज़ा जब उसके बदन को मस करेगी, उसके बदन को ग्रोथ करेगी, उसके बदन में इजाफा करेगी, तो ये सारे बैक्टीरिया उसके बदन का हिस्सा बनेंगे। जब भी उसके बदन का हिस्सा बनेंगे तो ये ग़िज़ा कौन खाएगा? बनी नौ इंसान खा रहे हैं, तभी तो ये सारे लोग हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हो रहे हैं। कोई खूनी पेचस कर रहा है, पेट के मरोड़ और दस्तों में मुब्तला है लोग, जिगर खराब हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, गुर्दे खराब हो रहे हैं। छोटी नस्ल यानी लड़के, नौजवान नस्ल के गुर्दे खराब हो रहे हैं। आप हॉस्पिटलों में जाएं, नौजवान ही के लड़के के ही गुर्दे खराब होंगे ज्यादातर। बूढ़े आदमी के कभी भी गुर्दे खराब नहीं हुए। वो ज्यादा बीमार होगा, शुगर होगी, उसमें जाएंगे। लेकिन ये जो नौजवान है इसके गुर्दे जब भी खराब होते हैं तभी आपने तशखीस नहीं करी तो मर्ज के जरासीम तो वहीं से आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसको इम्प्रूव करने की। इसलिए आगे चलते हैं कि जब प्लोरम डिजीज और स्टिफ्लोकॉक्स दोनों मिलके उसके गोश्त को नुकसान कर जाते हैं तो फिर क्या होता है? वो सारे का सारा गोश्त जो है ना वो नुकसान में चला जाता है। तो नुकसान जो है ना वो बहुत सारा नुकसान है, छोटा सा नुकसान नहीं है। हमने आगे और भी बहुत सारी चीजें इम्प्रूव। दोस्तों, अब फीड में दूसरी चीज जो उसमें डली है वो केमिकल और खाद है। जब फीड में आप लोग खाद और केमिकल डालते हैं तो ये खाद उसके बदन में जाती है तो चूजे की ग्रोथ को स्पीड में ले जाती है। यानी वो एक 50 ग्राम का चूजा 6 हफ्ते में 1.5 से 2 किलो वजन कर जाता है। लेकिन सोचना यह है कि ये 1.5 से 2 किलो वजन कैसे होता है? ये कौन सा टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से ये 1.5 से 2 किलो वजन कर गया है? जबकि घर में पाली हुई मुर्गी को जितने मर्जी खिलाओ चीज़ें वो 1.5 से 2 किलो वजन की नहीं होती। लेकिन ये हो जाता है भी इसके अंदर के मुहरकात को आपके सामने रखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या तरीकाकार इन्होंने अपनाया हुआ है जिससे
जानवर इतनी जल्दी ग्रोथ कर गया। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने हम सब के गुर्दे, जानवरों के गुर्दे इस धरती के मुताबिक बनाए हैं। जितनी भी हम यूरिया खाते हैं, जो इसमें ज़मीन में समाई होती है, वो ग़िज़ा में आती है। जितना भी यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, ब्लड यूरिया बनता है, यूरेट मादे बनते हैं, सारे के सारे ये गुर्दे उसको निकालते हैं। अगर वो इस हालत में ग़िज़ा को खाएंगे जानवर, फीड में ज़्यादा मिकदार में यूरिया डाल के, तो वो तो गुर्दे हमारे इस ज़मीन के मुताबिक उस यूरिया को, यूरिक एसिड को और यूरेट मादों को खारिज कर रहे हैं। तो हमारी ज़मीन के मुताबिक तो वो खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा खिला रहे हैं वो कैसे खारिज करेंगे? वो ज़्यादा खारिज नहीं कर सकेंगे, जिससे उसकी ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि ये ग्रोथ किस हिसाब से हुई। सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर गुर्दे यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया और यूरेट मादों को खारिज नहीं कर रहे, तो ये बदन में इजाफा करेंगे। कैसे करेंगे कि ये बदन में अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जितना मादा है, जितना फुजला है, पेशाब के बने हुए फुजले बदन में बाहर खारिज होने की बजाय स्टोर हो रहे हैं। बदन में जब स्टोर होंगे तो क्या ये गोश्त खाने के लायक है? ये खाने के लायक बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके अंदर ब्लड यूरिया यानी पेशाब है, यूरिक एसिड यानी पेशाब के फुजले हैं, और बहुत से दीगर पुर्जों के यूरेट मादे उसके अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है ये सारे फुजले गोश्त के अंदर स्टोर हो रहे हैं। जब स्टोर होंगे तो दिन दुगना रात चुगना ये जानवर बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा बहुत सारा, तो ये 1.5 से 2 किलो वजन सिर्फ 6 हफ्तों से 5 हफ्तों तक ग्रोथ कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये ग़िज़ा हमें पेशाब और गंदे फुजलों के इवज़ मिल रही है, यानी गंदे फुजले ही हम खा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम इस खाद को इन जानवरों को डाल के तो क्या अच्छा कर रहे हैं? हमारी ग्रोथ पे कितना असर। बनीनो इंसान जब इसको खाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? तो ये सारी मर्ज़ें, ये सारे मादे, गंदे फुजले सारे आपके अंदर कन्वर्ट होंगे। जो ही आपके अंदर कन्वर्ट होंगे तो आपके गुर्दे, आपका जिगर खराब हो जाएंगे, खून में गलास्तें बढ़ जाएंगी, बदन फूलना शुरू हो जाएंगे। अगर बदन फूल गए तो गुर्दे और जिगर की हालत नाकस तरीन हो जाएगी। जब नाकस होगी तो ये तस्वीर है, उसके मुताबिक वो सारे के सारे गुर्दे खराबी का शो कर देंगे। जब ये सारियां खराबी गुर्दे वाले हिस्से में आएंगी, जिगर के हिस्से में आएंगी, तो इंसान के पेट में पानी पड़ेगा, सोजें पड़ेंगी, हार्ट ब्लॉक होंगे, मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ आज हमने इस गोश्त को इम्प्रूव किया कि ये गोश्त खाने के लायक नहीं है। अगर खाने के लायक होता तो आज हम आपके सामने ये व्यू नहीं रखते। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, मेरा काम आप लोगों को बताना है कि ये चीज़ें नाकस तरीन हो चुकी हुई हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल गलत तरीका इख्तियार किया इन्होंने। देसी तरीके से चिकन को पालें, हम खाएंगे, मगर हम लोग इसी तरह नहीं करेंगे। आज दोस्तों ये वीडियो हमने बनाई है, लेकिन ये हम किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे, हम इसका टेक्निकल पॉइंट आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहतों को कायम रखे और आप लोग सेहतयाब रहें। अल्लाह हाफिज़।